मीनाक्षी मीनाक्षी आवाज सुनाई दे रही। ഡോക്ടർ അങ്കിൾ ഈ 11th അവറിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. മീനാക്ഷി ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ അഭിമാനമാണ്. कुछ हमने भाई को नहीं बताया। हाँ अब तो सर भाई भी नहीं चाहता, ऐसे भाभी करवा रही है। अब दिखेगा ये उसे, आ गई वो, उसको देख रहे हैं अभी। मीनाक्षी के बारे में पूछ रहा था आगे। आ गई गंदे कमेंट शौक हो गया उसके भाई से देखे। बाल कटवा उसके भाई को यकीन नहीं हो रहा कि ये वही है कि उसने बाल कटवा दिया। करके बड़े शब्दों को यूज कर रहे थे। आज भी कैसे लोग रखे हैं। इसका भाई आ गया नहीं आया ना अभी। ഈ വർഷത്തെ മിസ് കൊച്ചി കുമാരി മീനാക്ഷി ക്ലബ് अब से अपने लग रही हो। പലരും പറയുന്നേ सी इज माय डॉटर। इनके बच्चे नहीं हुए ना शायद, इसलिए अपना रही है उसे। अब चला गया उनके घर, अब लेगा इनकी क्लास। പെമ്പർ നോത്തി പറയുന്ന കേട്ടോണ്ട് എന്റെ മീനാക്ഷി എടുത്തിട്ട് അമ്മാനാടിയാലുണ്ടല്ലോ ചേട്ടാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കത്തില്ല. വീട്ടിൽ കയറി ഒന്ന് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് മര്യാദയല്ല പറഞ്ഞേ. അവളെ 10-16 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനല്ല. അതൊരു കടുകട അവളെ മാറിയാൽ അവളെ മാറില്ല, മാറ്റി ഞാൻ സഹിക്കില്ല. എനിക്കറിയാം എന്റെ മീനാക്ഷി ഒരിക്കലും അവൾ അങ്ങനെ ആവില്ല. നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു അമ്മയുടെ, അച്ഛന്റെ, ചേട്ടന്റെ എല്ലാവരുടെ ചെക്കിങ്. മീനാക്ഷി താൻ ഇന്ന് മിസ് കൊച്ചിനായതിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ. अब ड्रिंक भी करेगी ये, अब शराब भी पी रही है। ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് സോ ഒന്നിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒന്നിൽ കോള. മീനു ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ड्रिंक है वो, नहीं बोल तो वो वही रहे हैं। ऑरेंज जूस वो है, वो क्या पता मिला रहा वो। कोकुल है। हाँ ये तो ये हो सकता है कि उन्होंने बताया हो। क्या कर रही है, चूज कर रही है। अच्छा തന്നെ വെറുതെ അയ്യോ അന്നെ ചേട്ടച്ചേട്ടനെ പോലെ കൺട്രി ആക്കാനല്ലേ ഇവരെല്ലാം കൂടെ നോക്കുന്നേ. अबे नहीं चढ़ी वो पार्टी, ये यहाँ कैसे पहुंचा, उसे नशा चढ़ गया देखो। എനിക്കെന്തോ തല ചുറ്റുന്ന പോലെ. उन्होंने मिलाया था। ചുറ്റുന്നു. യോ പാപ്പ ഓക്കെ സുധാ कैसे To दोस्त me, हैं इसके the साथ? most modern interpretation of മോഹിനിയാട്ടം. उसे देख लिया। अब पता चला इसे। ओ മീനാക്ഷി Wait, cool it man. പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ മതി. കേറിയത്ത് घर को बंद कर दिया। ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് പുറത്തിറങ്ങി നിന്റെ മുട്ട ഞാൻ തല്ലിയടിക്കും. പിറന്നപ്പോ തന്നെ പെറ്റ തള്ളയെ തിന്നില്ല. വേണ്ട പറഞ്ഞാ കൂടിപ്പോ. പഠിത്തം നിർത്തുക, വീട്ടിൽ കൊണ്ട പൂട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ തോന്നാന്നറിയോ? വാശി, വൈരാഗ്യം, പിന്നെ താൻ പിടിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കില്ല. വിഷവും പോലോ. बता दिया ഈയുടെ വാര്യൻ സാർ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? उसे ट्रिक कर दिया। അതിപ്പോ പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് അരയ്ക്കുന്നു. അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. താൻ വെറുതെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുക. മോളെ മീനാക്ഷി, മോളെ എന്റെ പൊന്നു മോളി വാതിൽ അങ്ങോട്ട് തുറ. खोलने गई दरवाजा। ദേഷ്യപ്പെട്ടത് വേറെ ആരും അല്ല. മീനാക്ഷി कहीं वो चले तो नहीं गई वहाँ से खिड़की वगैरह से। മീനാക്ഷി चले गए शायद वो। अच्छा वहीं बैठे। ना वही बैठे। അയ്യോ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് അതൊക്കെ പോട്ടെ.
മോൾ എന്തിനാ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നേ? ആ ക്ഷമിക്കണേന്ന് ചേട്ടച്ചനോട് പോയി പറ. എഴുന്നേക്ക് വന്നാട്ടെ. അയ്യോ कितना चेंज हो गया उसका बिहेवियर। പെറ്റ തള്ളയെ കൊന്നില്ലേ? സിതൽ ഇനി പാല് സിതൽ തന്നാ സിതൽ കൊല്ലേ? വായി തോന്നിയൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാതെ ഇറങ്ങി പോകാൻ. ഇവിടെ എന്റെ ആര് പറ്റാ? ചെല്ലി, ചെല്ലി. ചേട്ടച്ചൻ ആർക്കും വേണ്ടി ഒരു ചുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചേട്ടച്ചൻ ജീവിച്ചത് ചേട്ടത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാ. നോക്കി കൊല്ലണ്ട. ചേട്ടത്തിന് വലിയ ത്യാഗിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. അതിന് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവരെ കൈയൊഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് अच्छा उसने शादी नहीं की। നാട്ടുകാരുടെ സിമ്പതി ചേട്ടത്തിന് നേടണമായിരുന്നു. അതിനാ ചേട്ടത്തിന് എന്നെ വളർത്തിയത്. ചേട്ടച്ചന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും? സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടത്തി, എനിക്കിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നേ തോന്നുന്നില്ല. अच्छा ये भाभी ने बताया हुआ। പിന്നെ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. ഇതിനൊക്കെ ഞാനെന്ത് വേണം? എന്നെ എന്തിനെങ്ങനെ ഹരാസ് मान लिया अपना है। കഴിഞ്ഞ ശനിയും ഞായറും ഒക്കെ വരുമെന്ന് കരുതി. വാശിക്ക് വാശി, ആരും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. എന്നുള്ള പറഞ്ഞാളാ വരണം. ഏതായാലും ചേട്ടത്തിന് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകണം, അതാ നല്ലത്. പിറന്നാൾ अच्छा इसका बर्थडे अपने दोस्तों। अच्छा अपने भाभी के साथ मना रही हो। भाई से मैसेज होने लगी है। Thank you. Hi. Hi, thank you. ഡോക്ടർ വേണ്ടേ? आपने सोचा अपने भाई अये, को नहीं pineapple बुलाया था। देगा। अच्छा वो बाहर खड़ा है। अबे वो अपने भाई के पास जा रहा था। देखो इसे कैसे मिलाते अपने फ्रेंड से वो। और जो उन्नी है उसे उसने कभी नहीं मिला अपने फ्रेंड വലിയ से। റീസ അറിയില്ലേ? അറിയില്ലേ? ഇത് മഞ്ജു. ഹലോ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാ. എന്നാ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ, ഞാനിവിടെ ഒന്നും ശരിയാവില്ല. ഞാനിവിടെ ശരി. अच्छा गिफ्ट ला रखा है कुछ। എനിക്ക് തോന്നി നീ വരും. अच्छा प्रसाद है मंदिर का। അവള് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും. നീ പോയിക്കോ. अच्छा उसकी माँ बोल रही थी। जिसकी माँ की डेथ हुई थी। उसे पता नहीं है കൊണ്ടുപോക്കണം. അറ്റ് ദിസ് വെരി മൂമെന്റ് ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ഹിയർ. क्या हुआ। കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ പോക്ക് ശരിയല്ല. वार्निंग दे रही है। हॉस्टल में। മെസ്സുകളിൽ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ബഹളം? ലെക്കും ലഗാനും ഇല്ലാതെ तब ये भी उन्हीं की तरह हो गई। उसकी फ्रेंड वैसी है। കുറച്ചുകൂടെ ഓമനിച്ച് വളർത്ത്. ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട. उसका दूसरा भाई आता है। वही तो अब क्यों नहीं बुलाया उसने उसे? नहीं बुलाती पेरेंट्स के रूप में। अपने दूसरे भाई के पास जाएगी। यही आएगी। शायद कहाँ आई। പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും. തല്ലാനും ഗുണദോഷിക്കാനും ഞാൻ ആരും അല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. കണ്ട് സംസാരിക്കാം. ചിലപ്പോ ഒരു നല്ല വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സങ്ങ് മാറും. ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയാ. എന്തിന് എനിക്ക് അവൾ ജീവന് ജീവൻ. जुकाम लगा ऐसा। അല്ലെങ്കിൽ വാരിഷാട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. ഞാൻ ശിവൻകുട്ടിയെ പറഞ്ഞേച്ച് മീനാക്ഷിയെ വിളിപ്പിക്കട്ടെ. ചേട്ടന്റെ ഓരോ കടമ്പെടുത്തവും വാശിയും കാരണം എന്തോന്നാ? കുന്തം. ആ മീരക്കൊച്ചിന്റെ കണ്ണീരും തുപ്പിന്നും പറഞ്ഞ് ചാവാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മീനാക്ഷി എവിടെ? അല്ല പിന്നെ പറയാതെ. ആ മീരക്കൊച്ചി ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. मीरा अभी तक अनमेरिड है। इसे मीरा के पास जाना चाहिए ना मेरे हिसाब से एक बार मिलने के लिए। കല്യാണക്കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവക്ക് ഇപ്പോഴും ചെവി കേൾക്കില്ല. പുസ്തകത്തിലോട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. अच्छा ये दिखा रही है। अच्छा आ गई हो यहाँ। नहीं वहीं जा रखा शायद ये। ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ?
കല്യാണം കഴിക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യോഗമാ മോനെ. इसको तो अपने पापा के घर में रहते थे, फिर अपने नानी के घर में रहते क्या ये? अपना घर छोड़ के जाएंगे। മീനാക്ഷി കൂടെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. മാറിപ്പോയി. മീരയിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റിയത് അവളാ. ഒടുവില എന്റെ കൂടെ വരാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും. हाँ बुला रहा सर, ഉണ്ണിയോട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും नहीं आएगी शायद ये। ഇപ്പൊ വളരെ വൈകിപ്പോയി ഉണ്ണി. देखो नहीं आ रही। മുമ്പ് ഉണ്ണിയെ പിന്തിരിപ്പിച്ച എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാരണം. दोबारा उसके पापा से बात करेगा। വരൂ ഉണ്ണി. ओ उसके पापा बीमार हो गए। इसी पापा की वजह से तो हुआ सब कुछ उस समय। अच्छे खासा इन दोनों की शादी हुई थी। पैरालाइज हो गया 2 साल से, अब सही हो गया। अब इनके रास्ते में कोई नहीं है। ഉള്ളി ചിലപ്പോ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവാം. അച്ഛാ ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായി? रो रहा है देखो। എങ്ങോട്ടും വിടാതെ ഈ അച്ഛൻ अच्छा अपने पापा को नहीं छोड़ सकते अभी, जैसे अपने बहन को नहीं छोड़ पाए ना। उस वक्त तो अपनी बहन की वजह से नहीं आया, उसने शादी नहीं की इससे। ഞാൻ വന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. और इस वक्त अब ये नहीं जा सकती अपने पापा को छोड़ के। കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരാന്നാ തോന്നുന്നേ. ആണിനെയും പെണ്ണിയൊന്നും കണ്ട കളർ ടിവിന്ന് ഇറങ്ങി വരാനേ തോന്നൂ. ഇയാളോടെ പോവാ? ചൂണ്ടാൻ. किसिंग कर रहा है। ओ यहाँ रखे हो, वही गांव में आ रखे हैं। अगर इनके पास जाएगा तो വിമൻസ് ക്ലബിന്റെ ഹോസ്റ്റലാ താമസം. താനും പോരെ. इसको शर्म നിർമ്മലാന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു. ഹലോ, ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടോ? ഞണ്ടും കരിമീനും തവളക്കാലും തരാം. ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ. അയ്യോ ദേ ദേ क्यों बोल रहे हो जाने के, वहाँ ना जाने के लिए? वहाँ शायद शराब मिलती है ना, अच्छा तब जा रहे हैं सब शायद। റെഡി. ആ ട്രീസയുടെ ക്യാമറ ചലിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഫ്രെയിമിൽ വേണം. कैसे दोस्त हैं उसके? പ്ലീസ് ഇയാളോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. മോന്റെ നിന്ന് ആടിലേക്ക് പോട്ടെ. ആടിൽ നിന്ന് ഷാപ്പിലേക്ക് നേരെ ഷാപ്പ്. कैसे हैं जोकर जैसा सब सब। നഗരത്തിലെ ചല്ല് ബാറല്ല ഇത്, കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഷാപ്പാണ്. ഈ ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ബോർഡിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇവിടെ ബോർഡില്ലേ? पार्टी हो रही है वहाँ। ഒന്നില്ലേ? Come on. अरे जाओ उस लड़की को नहीं पिलाई थी शराब। हाँ वहाँ सब शराबी बैठे हैं। 10 minutes but naturally adulterated. कैसे फ्रेंड है उसके? सब कुछ सब बिगड़े हैं। जैसे उसकी फ्रेंड थी ना वो दोनों, उन्हीं की वजह से। മോളെ കള്ള കള്ള അടിച്ചു. ഹലോ എവിടെന്നാ? देखो अब मिसबिहेव करने लगे लोग वहाँ। इसे देख रहे हैं। കള്ള് ഷാപ്പല്ലേ? അതേലോ. ओ अब देख लगे। ओ कैसे से बाहर से വീട്ടിലേക്ക് വരാം. വീട്ടിലേക്ക് വരാം. क्या कर रहे हैं? धुनाई कर दिया इसके। നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവളെ കൊല്ലുന്നത്. പോയി, പൊയ്ക്കോ. എവിടെയെങ്കിലും പോയി. अब कैसे रो रही हो? തനിക്ക് ചിലപ്പോ ഈശ്വരപിള്ള ചേട്ടന്റെ ബാധ കയറും. അല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണ്ടേ? മുമ്പി വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ അപമാനിക്കണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് കയ്യും കാലും തല്ലൊടിച്ചാലും സഹിക്കും. ഷാപ്പിൽ കയറാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരു പെണ്ണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല. അവളിപ്പോ ഡോക്ടറുടെ അവിടെ എനിക്ക് അവളെ वहाँ കാണണം. चले गए अपने भाई के पास। എല്ലാ കാര്യവും അവൾ എന്നോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു. കുറെ കരയട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി. അങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറുമല്ലോ. അവൾക്ക് ശരി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്ഷമ നിനക്കില്ല. സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്കൊരു തരം ഭ്രാന്ത. അതാ അവള് നിന്റെ അടുക്കൽ വരാതെ
हॉस्टल जा रही है। इसको ज्यादा ही दिखा रहे हैं फिल्म में। अबे शराबी बैठे हुए हैं। उसी के दोस्त होंगे वो। हैं? सारे लड़के हैं। ശ്രീസൻ ബീനൊക്കെ എവിടെ? ये तो इसके दोस्त थे। आपने तो प्रोग्राम अच्छा। ये कौन है? ये कोई और है? ये भी दोस्त होगा। उसके साथ छेड़खानी करने लगी। ये तो था नहीं उस दिन। आगे उसके दोस्त में ऊपर उबे बे 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 किनारे जा रही हो। अच्छा, पीटने लग गया। अबे इसे नीचे जाना चाहिए। अबे इसके पापा आ गए। पापा नहीं भाई। हाँ भाई। अबे ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല. अबे ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാ. ओ ऊपर देखेगा भी। മീനാക്ഷി എവിടെ? ओ पटक दिया उसने। अबे नीचे गिर गई। उस लड़की को उसी टाइम चढ़ना था उसके ऊपर भी। ऊपर चढ़ी गई नीचे उतर जाती। आ गया उस अपने भाई को देखना चाहती है। ചേട്ടൻ എവിടെ പോയി? अच्छा घर जाना चाहती। You are अब weak. हो रहा होगा First എടുത്തേ शायद പറ്റൂ. शायद। എനിക്ക് ചേട്ടനെ കാണണം. मेरे को बचाने आ जाते वो। ഉടനെ നീ കാണണ്ട. കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. മീനാക്ഷി അവനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. हाँ इसको क्या हो गया? घर बुला रहा हो जल्दी। മീനു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അവസ്ഥ ओके ऐसे क्या कर रहे हो? अबे അച്ഛനെ എനിക്കറിയാം. ദേഷ്യം വന്ന കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ലാതെ എന്തും പറയും, എന്തും ചെയ്യും. कैरेक्टर पर शक करने लगे ना वो शायद इस वजह से। നിന്നെ അടിച്ചതും വഴക്ക് പറഞ്ഞതൊക്കെ അച്ഛനാണ്. നീ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടന് നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യമില്ല. മഴയായിട്ട് ഇവിടെ കളിക്കാം. पागल पागल तो नहीं हुई है? हैं? वो लग रहा है पागल हो गई शायद ये। മീനാക്ഷി अबे उसके दिमाग में असर हुआ शायद। इसे पता नहीं है। अब आ गई मीनाक्षी। पता नहीं क्या करेगा। अब तो सही में आ गई। പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട്. तो ये फिर से उसे पीछे हो गया। हाँ ഇനി പോയി മഴ നനഞ്ഞേച്ച് വന്നപ്പോ अगर पहचानेगा नहीं जो उसका नाम पुकारने को अगर नहीं पहचान रहा शायद ये। ओ पहचान नहीं रहा उसे। അവിടെ എന്താ അവിടെ എന്താ മീനാക്ഷി എവിടെ? ചേട്ടാ उसी के सामने है वो उसे पहचान नहीं रहा। सुनो उसने। മീനാക്ഷി सर बचपन मीनाक्षी! की आवाज सुनाई दे रही। वो उसे मतलब जब वो छोटी थी उसी रूप में खोज रहा उसे। മീനാക്ഷി എന്താ പറ്റുണ്ട് ചേട്ടത്തിന്? മോള് വിചാരിച്ചാ മതി, ഒക്കെ ശരിയാവും. നീ बात करेगी ये। डर भी रही हो। കുറച്ച് വെട്ടിക്കുക കുറച്ചൊക്കെ വരാം. അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ
ഇഷ്ടമുണ്ടല്ല അട്ടി 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 വരെ ഞാൻ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് നോക്കും നേരമായിട്ട് ഞാൻ മീനാക്ഷി കാത്തിരിക്കും അവളെ ചത്തി ഒരിക്കലും ഒരിക്കൽ പിറന്നാളിന് അവളുടെ ഊണ് കഴിക്കാൻ खत्म हो गई। तो यहाँ पर ही फिल्म खत्म होती है। पवित्रम 1994 की फिल्म थी, मलयालम फिल्म, और अच्छी स्टोरी के साथ। बस लास्ट में थोड़ा सैड होती है एंडिंग। एंडिंग सेट थी इसकी। मुझे लगा अपनी बहन को देखकर ठीक हो जाएगा ये, लेकिन वहाँ पर उसकी याददाश्त चली गई थी और क्या था, नहीं पागल हो गया था वो। पागल सा। और वो उसे एज अ चाइल्ड ही ढूंढ रहा था, जैसे मतलब जो जैसा उसने उसे बचपन में देखा था वही इमेज थी उसके माइंड में, और वो उसी तरह से उसे ढूंढने में लगा था हर जगह। और मतलब उसका जो दिमाग था वो एक तरह से मतलब ख़राब हो गया था। तो वो जो एंडिंग थी वो सैड थी, और मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसी कोई एंडिंग होगी इस फिल्म की। हैप्पी एंडिंग नहीं थी, मतलब ज़्यादातर होती ना पुरानी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है, इसमें नहीं थी। एकदम रियलिटी जैसे दिखा रही थी। और मतलब फिल्म की स्टोरी अच्छी है, और जो मतलब एक भाई किस तरह से मतलब अपनी छोटी बहन के लिए सेक्रीफाइस करता है, और अपनी पूरी लाइफ, हाँ अपनी पूरी लाइफ उसके लिए मतलब सेक्रीफाइस कर देता है। क्योंकि जिस तरह से उसने उसके लिए अपनी जॉब छोड़ी, और उस लड़की से भी शादी नहीं कर पाया वो जिससे वो प्यार करता था, और उसने देखभाल की, और खुद भी उसने शादी नहीं की। तो मतलब पूरी लाइफ उसने उसी के लिए सेक्रीफाइस की अपनी, और मतलब उसकी इस तरह से देखभाल करता था वो। जब वो बड़ी हो गई थी तब भी वैसे ही देखभाल करता था जैसे जब वो छोटी थी। बाद में अपने दोस्तों की वजह से ही वो उनकी संगति में वैसे ही बन गई थी फिर वो। हाँ, अब उसका नेचर मतलब फिर फिर वैसे बहुत ही ज़्यादा हो गया बदल था। गया था उसका नेचर। जैसे उसके फ्रेंड थे ना, वैसे ही बन गई थी फिर वो। फिर उसे अपने भाई को इंट्रोड्यूस कराने में शर्मा रही थी। उन्हीं को मतलब उससे अपने फ्रेंड को मिलवाने में शर्म आती थी, और उसके बारे में बताने में शर्म आती थी। अब वो अपने दूसरे भाई को क्यों करती थी पसंद? क्योंकि वो एक डॉक्टर था, और वो मतलब एक वो था ना, अमीर था वो, रामकृष्णन। हाँ, उसका जो भाई था वो अमीर था, हाँ, और वो वेल सेटल था, डॉक्टर था। तो वहाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उन दोनों के जब बच्चे हुए नहीं तब उसे अपने लगने लगी उसके नहीं, भाभी को। हाँ, वो अपने लगने लगी फिर। हाँ मतलब उसकी भाभी ने जब उनके बच्चे हो जाते ना तब नहीं करती, क्या पता वो ऐसा। हाँ, उसकी भाभी तो मतलब जब वो छोटी थी तब उस टाइम उसे देखने भी नहीं गई थी, और उसको उसने एडॉप्ट भी नहीं, मतलब जिस तरह से वो रख सकती थी उसे अपने साथ अपनी बेटी की तरह, पर उसने नहीं रखा था उस वक्त। अभी जब वो बड़ी हो गई तब जब उनके बच्चे नहीं थे जब उनके, तब उसने उसे मतलब तब वो उसे अपना मानने लग गई। तब से अडॉप्ट किया एक तरह से। हाँ, तब वो चाहने लग गई कि ये हमारे साथ ही रहे, और जैसा मैं कहूँ वैसा करे। तो वही था ना, तब उसे अपनापन नजर आया। हाँ, पर ये उसे दिखा नहीं मीनाक्षी को, वो इन चीज़ों को बिल्कुल देखा ही नहीं मुझे उसने। लगा था कि मीनाक्षी को वो लेडी थी ना जो पुंचेरी, मुझे लगा वो बताएगी मीनाक्षी को, ऐसा दिखाएंगे फिल्म में। हाँ, कि तुम्हारे भाई ने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ था। उसे एहसास कराएंगे कि मतलब हाँ। उसने किस तरह से मतलब कितने सारे सेक्रीफाइस किए उसने तुम्हारे लिए। हाँ, तो ये फिल्म में दिखाया नहीं, ऐसा कुछ किसी ने मतलब बोला भी नहीं। हाँ। उससे ना बाकी एंडिंग में थोड़ा सा ठीक लगा कि मीनाक्षी को एहसास हो गया था कि उसका भाई कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। पर ये कि फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, बाकी टाइम का इसमें दिखा रखा है कि पहले वो जब छोटा था, मतलब उसकी बहन जब छोटी थी तब उसने
तब उसने अपने जिससे प्यार करता था वो मीरा वो छोड़ दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी ना। बाद में फिर मीरा ने जब शादी नहीं की उसके पापा फिर पैरालाइज हो गए, तब मीरा फिर अपने पापा को देखने लग गई। तब मीरा ने उसे मना कर दिया, पहले उसने मना किया फिर मीरा ने मना कर दिया। हाँ, टाइम का होना। उस वक्त वो अपनी बहन की वजह से उससे शादी नहीं कर पाई मीरा से, और फिर बाद में मीरा भी उसके साथ नहीं आ पाई क्योंकि उसके पापा की फिर कोइंसिडेंस। हाँ उसके पापा पैरालाइज हो गए थे। अब मतलब गड़बड़ वैसे सब मीरा के पापा की वजह से भी। अगर वो ऐसा ना करता। हाँ उसने जिस तरह से वो किया ना, उसके पापा को रुपए दिए और फिर रुपए इसलिए दिए थे ताकि ये इसकी ज़िंदगी से चला जाए, मीरा की ज़िंदगी से ना, और इसीलिए उसने रुपए दिए थे। अभी उन्हीं रुपयों की वजह से जो उन्नी था वो उसने फिर मीरा से शादी नहीं की। तो सब जो प्रॉब्लम हुई वो उस मीरा के पापा की वजह से ही हुई। अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो फिर जो वो है मीनाक्षी, तो उसे मतलब वो अच्छे से वो संभाल पाते, अच्छे से उसका ख्याल रख पाते। वो वैसे ख्याल तो उन्नी ने भी काफ़ी अच्छे से रखा उसका, पर ये था कि फिर मीरा उसको वो करती थी ना, उसको समझाती, और फिर उसे ऐसा नहीं लगता कि वो उसे कि उसकी लाइफ में उसकी माँ नहीं है। हाँ तब मतलब एक तरह से उन्हें मॉम डैड की तरह मानती फिर वो, मतलब उसके भाई भाभी होते हो। हाँ लेकिन उसको अच्छा लगता तब शायद उसे फिर वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ता ना, तब वो अपनी जॉब भी कर पाता है। उसके पापा की वजह से सब उसी पापा की वजह से मतलब सारी जो प्रॉब्लम हुई बाद में वो उसी वजह से। पापा ने ये शर्त रखी कि तुम्हें मीनाक्षी को छोड़ना पड़ेगा, तो वो ये कर नहीं सकता था। और फिर जो मीरा थी उसने भी शादी नहीं की, और फिर मतलब उसने दोनों की लाइफ बर्बाद की। उसके पापा ने अपनी बेटी की भी की और उसकी भी की, उन्नी की। जिस समय उसका अपने भाई से झगड़ा हुआ था तो उस समय बोला था उन्नी ने कि तुम इसे पालोगे मीनाक्षी को, और उस समय उसने एकदम मना कर दिया। हाँ बाद में कैसे आगे फिर वापस। जब उसका बर्थडे था मीनाक्षी का, उस वक्त उसने उसे बुलाया नहीं, उन्नी को। अब बाकी सबको केक खिला रही थी, अपने दोस्तों को, और जो उसका वो भाई डॉक्टर भाई है उसे, अपनी भाभी को, सबको। तो मतलब फिल्म अच्छी है, और फिल्म मतलब हाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के मतलब रियल लाइफ देख रहे हो, और किस तरह से मतलब चेंजेस आते हैं लाइफ में, और किस तरह से मीनाक्षी जो है जिसके लिए उन्नी सब कुछ सेक्रीफाइस करता है, और वही किस तरह से बाद में चेंज हो जाती है, और वही उसको देख के शर्माने लगती है, और मतलब उसको अपने भाई को देख के शर्म आ रही होती है। तो किस तरह से उसका बिहेवियर बदल जाता है, तो वो अच्छे से दिखा रहा है ना बहुत। तो मतलब ओवरऑल मूवी मतलब अच्छी थी, कहानी फिल्म की काफ़ी अच्छी है, और ये है कि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब वैसे दिखा रही है, नेचुरल ना। हाँ बस इस फिल्म में ऐसा है कि ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, इस वजह से आसानी से समझ में आ गई ना। इस फिल्म में ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में। मेन कैरेक्टर यही है इसमें, उन्नी और मीनाक्षी का ही दिखा रखा है एक तरह से ना, उनका जो रिलेशन है, बॉन्डिंग, उन्हीं पे ये स्टोरी बनी है पूरी फिल्म की। और मीरा का रोल भी मतलब अहम था, पर ये था कि जिस तरह से मीरा के पापा ने वो सब किया, तब वो भी उसकी लाइफ से चली गई थी, उन्नी की लाइफ से। मतलब उन्नी की लाइफ से वो तो नहीं गई थी, पर उन्नी चला गया था उसकी लाइफ से ना। तो वो रोल भी अहम था। मतलब यही है, इसमें 3-4 रोल ही हैं जो अहम है, और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। बाकी फिल्म बहुत सही है, बना रखी, बहुत अच्छी बना रखी है। हाँ बाकी एक्टिंग में मतलब बहुत अच्छी की हुई है, खासकर मोहनलाल ने। हाँ मतलब बहुत अच्छी की उन्होंने एक्टिंग में। कमाल। अच्छा तो उसी एज में जैसे होंगे जब उनके वाइट बाल थे, और काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर रखा है ना उसमें, सही दिख रहा है। मतलब ये कि जिस तरह से जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है मीनाक्षी, तो फिर जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, और
जिस तरह का उनका एटीट्यूड आता है वो सब मतलब वैसे दिखा रखा है जैसे रियल होता है बूढ़े लोगों का। जैसे एक तरह से गुस्सा आ जाता है, फिर अकेले रहने लगे था तो ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था उसे। फिर जब उसने देखा मीनाक्षी को बाहर में तो सीधा उसे मारने पड़ गया। हाँ उसे गुस्सा है ना कि ये मतलब शराब पीने लग गई अब। तो फिर वहाँ पर भी और ज़्यादा मीनाक्षी को गुस्सा आ गया था और फिर और दूर चले गई थी उससे। लेकिन बाद में जब वो एक्सीडेंट हुआ तब सोचा होगा उसने कि मेरा भाई आया था उस समय वहाँ मेरी जान बचाने के लिए। तब उसे एहसास हुआ। तब अपनी मतलब गलती का एहसास हुआ ना उसे। कितना वैल्यू रखता है मेरा भाई मेरे लिए। मतलब उसने मतलब कितना गलत समझा अपने भाई को ना। तब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। ये थोड़ा सा अच्छा लगा फिल्म में देख के। पर यही था कि लास्ट में जिस तरह से पागल हो गया था तो फिर वही उसमें मतलब एक तरह से सैड एंडिंग थी। फिल्म ये दिखाती है ना कितनी मतलब हमें रिश्तों की कितनी वैल्यू रखनी चाहिए और वो सब चीज़ें सिखाती है। और मतलब जो वक्त होता है उस वक्त की कदर मतलब करनी चाहिए। अब जैसे मीनाक्षी ने जब उसका भाई बिल्कुल सही था उस वक्त उसे अपने भाई मतलब अपने भाई की वैल्यू का पता नहीं था और उसने कितना सेक्रीफाइस किया उसके लिए, कितना उसने उसको कितना वो उसको प्यार करता है, कितना उसका ख्याल रखता है। उन चीज़ों की कदर नहीं थी उसे बाद में। पर बाद में जब टाइम बीत गया जब वो पागल हो गया तब उसे एहसास हुआ। और उन्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। शोभाना को उसने मतलब जिस तरह से उसने मीनाक्षी के लिए मतलब शोभाना को छोड़ा तो दोबारा उसने मतलब उसके बारे में बिल्कुल उसे ढूंढा नहीं। जैसे वो बड़ी हो गई थी तब तो उसे ढूंढ सकता था वो। हाँ तब ढूंढ सकता था। हाँ उसके बारे में मतलब एक वो होती है ना फिक्र होती है उसके बारे में पता लगा सकता था कि वो कहाँ है, क्या उसकी शादी हो गई कि नहीं हुई, वो कैसी अपनी लाइफ में। पर उसने बिल्कुल उसके बारे में मतलब उसे ढूंढा ही नहीं बिल्कुल भी मीरा को। हाँ मीरा को। और वही उसकी गलती थी। अब वो उसने तब गया उसके पास वो जब उसकी बेटी ने उससे बोला। हाँ तब क्या हो बाद में तो पर तब तक टाइम बीत गया था। तब तक उसकी शादी हो सकती थी अगर थोड़ा देर याद 3-4 साल भी जाता जो अगर डैड के बाद दोबारा जैसे वो बड़ी हो गई थी मीनाक्षी तब वो जा सकता था उसके पास और शायद फिर उनकी शादी भी हो जाती उसके पापा के तो मान जाते। फिर वो अपनी क्या जॉब करने तो गया था। उसने उसे बिल्कुल भी खोजा ही नहीं ना। हाँ उन्हें टाइम की उन्हें की फिक्र उसे अपनी दुनिया मान लिया था उसे ना मीनाक्षी। उसके लिए बस मीनाक्षी सब कुछ थी। पर ये था कि वो भी उससे प्यार करती थी ना मीरा और वो ऐसी उसकी भाभी की तरह भी नहीं थी वो तो एक अच्छी लड़की थी और वो मीरा का वैसा ही ख्याल रखती जैसे वो रखता था ना। तो उसे मीरा को भी मतलब मीरा के बारे में मतलब जानना चाहिए था उसके बारे में उसके बारे में पता लगाना चाहिए था ना क्योंकि मीरा भी उसे बहुत चाहती थी और वो भी अगर उतना ही एफर्ट डालता मीनाक्षी तो हो जाते बड़ी हो गई थी। उसने एक बार भी उसके बारे में मतलब पता नहीं लगाया मीरा के बारे में कि वो कैसी है क्या कर रही है। तो ये चीज़ हाँ तो मतलब ये भी दिखा रहा फिल्म में कि मतलब टाइम पे हमें मतलब जो चीज़ मतलब मिल रही है उसे ले लेनी चाहिए। हाँ और जो काम हम मतलब रिश्तों की वैल्यू समझनी चाहिए क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है कि अगर हम उस वक्त उसको वैल्यू नहीं देते किसी कोई चाहे भी काम हो या रिश्ते हों तो बाद में हमें फिर पछतावा होता है हमने वो क्यों किया। हाँ और बाद में मतलब पछतावा ही हुआ एक तरह से उन्नी को भी हुआ और मीनाक्षी को भी हुआ दोनों को ही हुआ। मीरा को नहीं मीरा को तो उसकी वजह से होना ही था पर मेन पछतावा तो उन्नी को भी हुआ ना क्योंकि उन्नी तो गया था उसे छोड़ के और मीनाक्षी को भी हुआ तो दोनों को ही पछतावा हुआ मतलब ना। तो ये चीज़ मतलब अच्छी दिखा रही है फिल्म में ना कि टाइम के हिसाब से हमें रिश्तों को और जो भी हमारे काम हैं तो उन्हें मतलब कर लेना चाहिए उस समय और रिश्तों की वैल्यू को समझना चाहिए क्योंकि बाद में जब टाइम गुजर जाता है तो तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है।
तो वो चीज़ अच्छी दिखा रखी थी। और बाकी एक्टिंग तो मतलब सबकी बहुत अच्छी है, और मूवी बिल्कुल वैसी थी, नेचुरल थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम रियल स्टोरी देख रहे हो। बिल्कुल नेचुरल वे में दिखा रखा था ना हर चीज़। बहुत अच्छी बना रखी है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।